मान रही शुक्रिया स्पीकर साहब। आपने मुझे कम वक्त में बजट पे बोलने का फटाफट मौका दिया और मैं अपनी बहन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इनकी बारी थी, इन्होंने कहा नहीं आप पहले बोल लें, और साबिर भाई आपका भी। स्पीकर साहब, मैं अपनी तकरीर 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करके करूंगा। पहला हिस्सा मैं जरा बहुत जरूरी समझता हूं उसको एड्रेस करना, बात करना, थोड़ी मोरालिटी और अखलाकियात पे। दूसरा हिस्सा गवर्नेंस और बजट पे, और तीसरा हिस्सा मैं आपको अपनी वजारत के बारे में बताऊंगा कि क्या मिला था, क्या किया, कहां पहुंचे और क्या करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, पीपीपी के चेयरमैन साहब फरजंद जरदारी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कुछ कलमात अंग्रेजी में भी फरमाए। मुझे नहीं पता कि वो किसको सुना रहे थे, तो मैं आपसे थोड़ी सी इजाजत के साथ, मैं भी सोचता हूं कि जिसको भी वो सुना रहे थे उनको मैं सुना दूं। शायद वो उर्दू जुबान नहीं जानते अंग्रेजी में, तो शुरू की 3-4 लाइनें मैं जरा अंग्रेजी में उन्हीं को सुनाना चाहता हूं। स्पीकर साहब, what has been happening in this august house is actually a case study of morality, not morality but selected morality. Sadly, only one side of the picture is shown to the outside world. Why? Because my esteemed colleagues sitting on this side, on the treasury benches, follow the rules of the house and do not use their mobile phones to make videos. On the contrary, half of the assembly on the other side is making videos. Speaker Sahib, if the world hears the kind of filth, abusive language and absolute rubbish that has been uttered towards the members of the treasury benches by the opposition benches, especially when the honorable ministers are speaking, in fact, even when the honorable prime minister has spoken, the world would know the tolerance, patience and democratic mindset that the treasury benches have shown before all hell broke loose here last week. The nonsensical behavior from the first speech of the Prime Minister carries on till date. I am actually appalled that senior parliamentarians, some of whom are almost like furniture fixtures in this house, continuously allow this to happen. In fact, they even incite such ludicrous and obnoxious behavior. These senior members include ex-prime ministers, ex-federal ministers, even chairmen of political parties. An ex-prime minister who's been a member of this house for a while and is facing accountability cases even has the audacity to walk from his seat and approach the speaker's area and tell the speaker, the honorable speaker, on his face that I will hit you with a shoe. I am ashamed that this happened in this house. Just for the record, sir, just for the record, his late father defaulted of 1 billion rupees in 1984 from the National Bank of Pakistan. Then they stand here and deliver speeches in English to impress their Western masters. I hope going forward sanity will prevail and such third-class behavior by members, some of who have been termed as a Sicilian mafia and godfathers by the Supreme Court, by none other than the Honorable Supreme Court of Pakistan, will not be tolerated in this house. Speaker Sahib, सोचा था कि बजट की तकरीर है, अपनी वजारत के बारे में बात करूं, फिर बस आराम से डेस्क बजाऊं, यानी इनके मुताबिक हो जाऊं, यानी मैं भी मुनाफिक हो जाऊं। 22 साल की जद्दोजहद जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, इसलिए तो नहीं थी कि सिर्फ मेरी टाइम ठीक करनी है। हमने भी अपना छोटा सा किरदार अदा इसलिए किया था कि पाकिस्तान ठीक करना है। फिर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करके इनकी तकरीरें सुनी, बड़ी बर्दाश्त से सुनी। स्पीकर साहब, ऐसा लगा
कि 2018 से पहले पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान की असेंबलियों में भी दूध की नहरें बह रही थीं। ऐसा लगा कि बड़ा अखुवत और भाईचारे का माहौल था और यहां तमाम ऑनरेबल मेंबरान हाजी थे या मुफ्ती थे, शेखुल इस्लाम थे, हुज्जतुल इस्लाम थे, शायद कोई आयतुल्लाह भी थे। मैं इन सारे टाइटल्स का तहे दिल से एहतराम करता हूं, लेकिन ये लेक्चर हमें वो ना दें जो अपने गरेबान में झांक के कभी नहीं देख सकते। सारा दिन ये लोग हमें 90 की दिहाई याद दिलाते हैं। जी आप 90 की दिहाई की पॉलिटिक्स में ना ले जाएं। भाई साहब 90 की दिहाई में हम तो सियासत में थे नहीं, उस वक्त भी आप ही थे, आज भी आप ही हैं। चले स्पीकर साहब 90 की दिहाई को छोड़ देते हैं, 1975 की दिहाई से शुरू करते हैं। स्पीकर साहब इसी हाउस से जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, सार्जेंट इन आर्म्स को कह के ऑपोजिशन लीडर्स को, ऑपोजिशन मेंबर्स को बाहर फेंकवाया करते थे। तारीख का एक और भी घिनौना वाकया है। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे हमारे मुल्क में स्पीकर साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, उनको भी इसी असेंबली से उठा के बाहर फेंका गया था। कमाल की बात यह है कि आज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, कमाल की बात यह है कि आज उनके पोते उन्हीं के नवासे के साथ बैठे हैं जिन्होंने उनके नाना को, दादा को बाहर फेंका था। इन्हीं जमहूरियत पसंद लोगों ने स्पीकर साहब, ये जो जमहूरियत का दर्स हमें देते हैं, इन्हीं जमहूरियत पसंद लोगों ने अपने आज के हलीफ मगर पुराने हरीफ नेशनल अवामी पार्टी, जो अब अवामी नेशनल पार्टी है, उसको बैन करवा के उस पे गद्दारी के मुकदमे करवाए। और कमाल की बात यह है कि वो मुकदमे खत्म किसने किए? जब एक आमिर जनरल जिया इस मुल्क में राज करने आ गया, उसने ये मुकदमे खत्म किए, जो कि जमहूरी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने गद्दारी के मुकदमे लगवाए थे। ये तारीख है स्पीकर साहब। फिर क्या हुआ? अच्छा चलें, अब जनरल जिया की बात आई गई है तो उनकी बाकियात पे भी थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं। वैसे भी कल फादर्स डे था। जिया साहब ने स्पीकर साहब जनरल जिलानी को हुक्म दिया कि एक कारोबार में, एक्टिंग में और क्रिकेट में फेल यंगस्टर है, नौजवान है, जरा उसको गोद ले लें। तो साहब जो आज ऑपोजिशन लीडर हैं वो साहब भी अपने बड़े भाई के साथ गोद भराई तकरीब में जनरल जिलानी की गोद में आ गए। और उनके बड़े भाई जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के 2-3 दफा, वो आजकल ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। वो और बात है कि ये खुद उनको ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट देने से उसको महरूम रखना चाहते हैं। अब जनरल जिलानी के जो सरोगेट बच्चों की दास्तान और उनके करतूत आप सबके सामने हैं। अगर किसी को शक है तो सोशल मीडिया उठा के देख ले, भरी पड़ी है वो दास्तान। चाहे कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, उसके ऊपर पोस्टर फिकवाना, चाहे कि हाउस में उस वक्त भी गालियां देना, अखबारों में गंदी गलीज झूठी खबरें लगवाना, किसी के खानदान पे गंद फिकवाना, ये तारीख इस मुल्क की यहां से नहीं, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स से नहीं, इन जमात की पॉलिटिक्स से भरी पड़ी है। ये बड़े पीएचडी हैं, इनको बड़ा वसी तजुर्बा है इस काम में। स्पीकर साहब यहां कहानी खत्म नहीं होती। फिर आ गई वो मिसा के मुकमुका या वो मजा के मुकमुका। अभी उसकी स्याही भी नहीं हुई थी, सूखी नहीं थी। जहां साइन किया था वो अभी स्याही भी गीली थी, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक और आमिर के साथ जाके अबू धाबी में डील करके बाकियों को खुड्डे लाइन लगा दिया। इस मुकमुका के बाद जो हुआ, और माशाल्लाह जो जबानें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की और एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल की, वो भी इन ऐवानों का और टीवी का और सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, दुनिया देख सकती है। ये एक घनौनी तारीख है इस मुल्क की स्पीकर साहब। अब इस असेंबली का हाल स्पीकर साहब अफसोस से कहना पड़ता है, अब ये हाल है कि आज ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के भी उनके सामने उनको गालियां बकते हैं।
मैं अपने साथी मेंबरान जो ट्रेजरी बेंचेस हैं पे बैठे हैं, इनके सब्र की दाद देता हूं। बिलखुसूस मुराद सईद नहीं है, मुराद सईद को, जिनकी जात पे, जिनके खानदान पे मुसलसिल हमले होते रहे। बल्कि मैं मुराद सईद से माफी भी मांगता हूं, क्योंकि हम इखलाकियात से इतने गिर गए हैं कि सियासत के नाम पर लोगों की इज्जत को भी दांव पे लगा देते हैं। मैं अपनी खवातीन मेंबरान का, पार्लियामेंटेरियंस को भी दाद देता हूं कि उन्होंने इस सब गलाजत सुनने के बावजूद भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैं बिलखुसूस माजरत ख्वाह हूं, मैं बिलखुसूस माजरत ख्वाह हूं स्पीकर साहब, और शर्मिंदा भी हूं खातून अव्वल से भी। वो एक गैर सियासी पर्देदार खातून है, उनके बारे में भी जिस गलीज जबान से यहां एक प्राइम मिनिस्टर एक्स और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स ने बात की, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि सियासत इतनी गिर गई है। हजरत ह्यूमन राइट्स की कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मैं स्पीकर साहब गुजारिश करूंगा कि इनके माइक खोल दिया करें। मैं आपसे स्पीकर साहब इल्तमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जब इस तरह के कलमात वहां से अदा किए जाते हैं, मैं आपसे खुदा का वास्ता इनके माइक खोल दें ताकि अवाम देखे कि ये किस तरह की जबान, और खुद इनकी जांच पड़ताल कर ले। अब जरा गवर्नेंस और बजट की बात कर लें स्पीकर साहब। मोहतरम ऑपोजिशन लीडर, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि चंद दिन पहले वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे इलाज कराने। अल्लाह ने उनको सेहत दी, तंदुरुस्त हो गए, और 3 दिन तक यहां पे वो जबरदस्त तकरीर करते रहे। वो फरमाते हैं कि टैक्स पेयर्स के पैसों की फिक्र नहीं। हजरत जब खुद चीफ मिनिस्टर थे तो कितने कैंप ऑफिसर्स थे लाहौर में, सिर्फ उसकी गिनती नहीं पता, मुझे नहीं पता, 4 से भी ज्यादा थे शायद। बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर साहब थे, हेलीकॉप्टर्स में नारियां आती थी, दुनिया को पता है। सैकड़ों फॉरेन ट्रिप्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। हर हफ्ते जरदारी साहब दुबई चले आते, सब अवाम के पैसे पे। आप कंपेयर करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फॉरेन ट्रिप्स का खर्चा और इनके फॉरेन ट्रिप्स का पता जाएगा कि फिक्र अवाम के पैसे की इमरान खान को है कि उनको है जो पहले यहां हुकूमत करते थे। स्पीकर साहब, मैं ये ना भूल जाऊं, साहबजादी के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक पूरा मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल खोला गया था। अवाम के पैसे पे तनख्वाह बट रही थी। उस वक्त अवाम के पैसों का ख्याल नहीं आया। फरमाते हैं कि अगर पीएमएल में केपीके में पीएमएल की हुकूमत होती तो वो केपीके बदल जाता। भाई साहब, केपीके के लोगों ने एक तारीख रकम की है, इमरान खान साहब को दूसरी दफा वोट डाला, जो वहां बहुत कम होता है, और इस दफा मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से कामयाब कराया। कहते हैं कि 6 ऑपोजिशन लीडरान 6-6 महीने जेलों में रहे। भाई ऐसे काम क्यों करते हो? दुनिया कह रही है कि कोरोना हैंडलिंग का सबक पाकिस्तान से सीखो। ये फरमा रहे हैं कि हम कोरोना में फेल हो गए। अब मुझे स्पीकर साहब आप बता दें, मैं आपकी बात मान लेता हूं, या मैं बिल गेट्स की बात सुनूं या शहबाज शरीफ साहब की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ स्पीकर साहब जब सूप किचन पे उन्होंने तनकीद की। स्पीकर साहब, पूरी दुनिया में जो हुकूमतें होती हैं वो अपने गरीब लोगों का ख्याल करती हैं। जो माश जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती हैं उनका ख्याल किया जाता है। अगर किसी भूखे को खाना मिल रहा है, उसकी रोजी पे तनकीद क्यों करते हो, क्यों बददुआ लेते हो? हेल्प करो उसमें। स्पीकर साहब, आप जरा सिंध पे आ जाएं। माशाल्लाह, कराची को देख के तो न्यूयॉर्क भी शर्मा जाए। वजीर सखावत के सिंध फेस्टिवल से लेके वजीर तालीम के कारनामों तक एक अजीब कोकाफ के जिनों की दास्तान है, क्योंकि ऐसी चीजें गायब हो जाती हैं। एक वजीर के बारे में सुना है कि एक टीवी चैनल के मालिक भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे उनके कारोबार में। मैं सारे चैनल्स पे ढूंढता रहा, पूरी धरती में ढूंढता रहा, धरती चैनल नहीं मिला। लेकिन पता यह चला कि करोड़ों रुपए रोज के इश्तेहार वहां जाते हैं। बड़े बड़े चैनल्स को नहीं, उस चैनल को जो धरती पे नजर नहीं आता।
सीएम साहब से बात कीजिए, वो फरमाते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब दे नहीं हूं। तो भाई अगर आप जवाब दे नहीं है तो अनवर मजीद को क्यों जवाब देते हैं? और या अनवर मजीद से सवाल ही पूछने जाके कि भाई इतनी शुगर मिले इतनी जल्दी कैसे बन गई? स्पीकर साहब, कमाल की बात है, 14 साढ़े 13 पता नहीं कितने साल की हुकूमत, ना नाले बने, ना गटर साफ हुए, तजावुजात में इजाफा हो गया, सेहत का निजाम तबाह, सिंध में हॉस्पिटल तबाह, थाने आज तक बिक रहे हैं, मुनशियात फरोशी खुल के हो रही है। मेरे हल्के PS 104 में पुलिस की रिपोर्टें मैं आपको दूंगा स्पीकर साहब, दुनिया के टीवी चैनल से दिखाई कौन मुनशियात फरोश है, उस पुलिस की रिपोर्ट में जो सिंध पुलिस ने लिखी है पढ़ लें। इस हुकूमत के नीचे उजैर बलोच, निसार मुराई, यूनुस मेमन, मंजूर काका, बड़े मशहूर अनवर मजीद, पता नहीं कौन कौन जिन निकल गए और हमें आके दर्ज देंगे ये गवर्नेंस का। स्पीकर साहब, बजट की बात थोड़ी सी, FBR ने तो अपने टारगेट अचीव कर लिए। अभी मेरी बहन कह रही थी कि पता नहीं पैसे कहां से आएंगे। FBR ने तो टारगेट अचीव कर लिए। इसका मतलब है कि सब सूबों को NFC अवार्ड मिलेगा, सूबा सिंध को भी मिलेगा। कमाल की बात यह है स्पीकर साहब के 14 साल से हुकूमत सिंध ने PFC अवार्ड नहीं किया। 14 years have passed, no provincial finance commission has taken place, और हमें गवर्नेंस और फाइनेंशियल फिस्कल मैनेजमेंट सिखाने आए हैं। 25% अपना टैक्स कलेक्ट कर सके, यह भी बड़े मजे की बात है। 21 बिलियन का टारगेट था, 5.5 बिलियन कलेक्ट किए और बाकी का पता नहीं। 884 मिलियन, 884 मिलियन सूबा सिंध को दिया जाएगा इस साल। माशाल्लाह, इनके अपने टैक्स कलेक्शन में 96%, 96% इनडायरेक्ट टैक्सेस में है। मगर स्पीकर साहब, सिंध का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। हमने सोचा कोई डेवलपमेंट हो रही होगी, कोई डेवलपमेंट में फंडिंग हो रही होगी, इसलिए नहीं बढ़ रहा स्पीकर साहब। इसलिए बढ़ रहा है कि सियासी भर्तियों को नौकरियां देनी है। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो नैब से प्ली बार्गेन करके बैठा है। कैपेसिटी है ना, स्ट्रैटेजी है कोई चीज को खत्म करने की। स्पीकर साहब, 2021 में इनका टारगेट था 233 बिलियन रुपए डेवलपमेंट का, वो कम हो गया 160 हो गया, वो भी इनसे पूरा खर्च नहीं हुआ। अब कहते हैं 330 बिलियन हम खर्च करेंगे इस फिस्कल ईयर में। मुझे समझ में नहीं आता कहां खर्च करेंगे। 12 मिलियन बच्चे हैं सर सिंध में, 4.5 मिलियन सरकारी स्कूलों में, 3.5 मिलियन प्राइवेट स्कूल्स में और 4.5 मिलियन किसी भी स्कूल में नहीं। 37,000 वैकेंसीज हैं टीचर्स की, 37,000। 29 टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, 2 चल रहे हैं, टीचरों की ट्रेनिंग नहीं हो रही। और तकरीबन 2.5 मिलियन बच्चा वो है जो कि 5वीं जमात के बाद खुद सरकारी स्कूल से अपने आप को बाहर निकाल देता है। वो पता नहीं 5वीं जमात तक भी क्या पढ़ाई होती है। स्पीकर साहब, एक बहुत बड़ा स्कैंडल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस। लांडी मेडिकल कॉलेज 2013 में 684 मिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट बना। 24 महीने में इसको खत्म होना था। ये 2021 आ गया, ये कौन से 24 महीने, आज तक खत्म नहीं हो सका। पूरे बजट में से सिर्फ 15% बजट इन्होंने अर्बन एरियाज के लिए रखा है, माने कराची, हैदराबाद, मीरपुर का, सक्कर, नवाबशाह। 3.25% सिर्फ कराची के लिए रखा है। वो शहर जो 50% रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है, 90% सिंध का रेवेन्यू शहर से आता है, उसको आप खैरात में 3.25% दे रहे हैं। स्पीकर साहब, कराची एक बहुत बड़ी मेट्रोपोलिस है, शैम्बल्स में है, तबाह है। कराची की रोडें तबाह हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कराची के अस्पताल तबाह हैं, कराची के सरकारी स्कूल्स तबाह हैं,
कराची के ट्रांसपोर्टेशन तबाह है। 14 साल में एक नई बस आई है जो अभी इसकी ट्रायल हो रही है। 14 इयर्स, 14 साल में ट्रांसपोर्टेशन में बस नहीं ला सके, लेकिन दर्ज देंगे गवर्नेंस का। स्पीकर साहब मैं किधर हो गया हूं? चलें, आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, और मैं खास तवज्जो चाहूंगा, शुक्रगुजार हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यहां हैं। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक रनवे पे टेक ऑफ करने खड़ा है। जेपी मॉर्गन दुनिया का बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो कहता है पाकिस्तान इज राइप फॉर इन्वेस्टमेंट। वो अपने इन्वेस्टर्स को कह रहा है पाकिस्तान की तरफ देखो। 900 बिलियन रुपए का पीएसडीपी बजट किसी तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं दिया। स्पीकर साहब, सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कामयाब किसान प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, माहीगीरों के लिए लो कॉस्ट बल्कि कुछ फ्री लोन जो कम के हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर की छूट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान 130 से 72 नंबर पे आ गया। दुनिया सेकंड पोजीशन पे है साउथ ईस्ट एशिया में। 850 सीसी की गाड़ी जो कि एक मिडिल क्लास ब्लू कॉलर वर्कर लेता है, उसमें कमी, हाइब्रिड कार्स में ड्यूटी कम, 10 बिलियन ट्री सुनामी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो एहसास प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान के वो लोग जो कोविड से जिनकी माश इफेक्ट हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको घर घर पहुंचा के पैसे दिए गए। पाकिस्तान स्पीकर साहब आगे बढ़ रहा है। मेरी वजारत बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो ट्रेड है ना उसके ऊपर इकोनॉमिक पल्स होता है। वो ऐसे होता है कि जहाज आते हैं, जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी हमें रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। हमने स्पीकर साहब जब से वजारत संभाली तो ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कभी नहीं नाम नहीं सुना था कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। मैं आपको जल्दी जल्दी एक पोर्ट कासिम के बारे में बता दूं। स्पीकर साहब, प्लॉटों की कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए एकड़ और मार्केट वैल्यू थी 4-5 करोड़ रुपए एकड़। मैंने स्पीकर साहब 1 इंच जमीन नहीं बेची प्रेशर में आने के बावजूद, क्योंकि मैं चाहता था कि मार्केट रेट और ऑफिशियल रेट एक हो, और ये सारी जमीनें पहले बांट चुके हैं। एक्सटर्नल ऑडिट, आज पोर्ट कासिम के रिजर्व फंड में $700 मिलियन से ज्यादा जमा हो गया। $700 मिलियन plus equivalent to Pakistan rupees is in the reserve fund of Port Qasim, and this is without the sale of plots, operational profits. यहां जनाब 2008 से उसका ऑडिट ही नहीं हुआ था फाइनेंशियल। अब हम 2016 तक ले आए, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जुलाई हम अप टू डेट होंगे। हमारा नेट प्रॉफिट स्पीकर साहब मई में 21 मई तक नेट प्रॉफिट सिर्फ पोर्ट कासिम का 17.2 बिलियन रुपीस था। इंशाल्लाह जून 30 तक 19 बिलियन पे हम खत्म करेंगे। 23% ग्रोथ है, 23%। 8 अरब रुपए पोर्ट कासिम ने सरकार को टैक्सेस में दिए। 57 मिलियन टन का कार्गो इस साल हैंडल किया है, जो कि पिछले साल से 12% ऊपर है। पिछले साल 51 मिलियन टन था। यह भी एक तमाशा था स्पीकर साहब, अगर आपने टीवी में देखा होगा और सबने, बोट्स लगती हैं जब जहाज आता है तो टग बोट्स होती हैं जो जहाज को बर्थ पे लगाती हैं। हमने इनहेरिट किया, माने हमें विरसे में मिला एक कॉन्ट्रैक्ट पिछली हुकूमत का, $29,000 पर डे, $29,000 पर डे टग बोट किराए पे ली हुई थी, और डीजल भी आपका अपना था। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर पीएसडीपी फंडिंग के पोर्ट कासिम ने अब 4 नई टग्स और 2 पायलट बोट्स खरीद ली हैं 33-34 मिलियन डॉलर्स की, जो अगले साल के शुरू में एलसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन साइंड। वो इस साल के आखिर, अगले साल के शुरू में पाकिस्तान की अपनी टग बोट्स हो जाएंगी। अपनी है, तादाद बढ़ जाएगी। इसी तरह हमने केपीटी में भी किया है। स्पीकर साहब, 24/7 पोर्ट ऑपरेशनल रहा, एक दिन बंद नहीं हुआ। 2 नए एलएनजी टर्मिनल्स आ रहे हैं। इनके एलएनजी टर्मिनल्स हमें $2.5 लाख पर डे कॉस्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। $2.5 लाख पर डे। टेक और पे आप गैस लाएं नहीं लाएं, 2.5 लाख उनको दे दें। 2 एलएनजी टर्मिनल्स हमारे हुकूमत में हुए, वो आ रहे हैं, उनको जीरो। वो अपने पैसे से आ रहे हैं, जमीन उन्होंने खरीदी है, अपनी गैस लाएंगे,
कोई टेक और पे नहीं है, टेक एंड पे है। अपनी गैस लाएंगे, अपनी गैस बेचेंगे, कोई सरकार से ताल्लुक नहीं। डीरेगुलेट कर दिया हमने गैस इंडस्ट्री को। 5 और बर्तें हम बन रही हैं। केपीटी स्पीकर साहब, ये बड़ा खास, केपीटी शहर के बीच में है अब, और माशाल्लाह जहां केपीटी की जो लैंड वैल्यू है, एसेस्ड लैंड वैल्यू जो मैं करवा रहा हूं, जो कि कभी नहीं हुई, वो पाकिस्तान के 10 से 15% एक्सटर्नल डेट को एड्रेस कर सकती है, एक डिपार्टमेंट की लैंड वैल्यू। वहां यारों दोस्तों को जमीनें कौड़ियों के दाम दी जाती थी, वो 99 साल की लीज में कन्वर्ट करा के अरबों में बेचते थे। अब जब से हम आए, कोई जमीन हमने एक भी जमीन अलॉट नहीं की जब तक रीवैल्यूएशन ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। के साथ एक बड़ी जबरदस्त जगह है जिसका नाम है लियारी, और शकूर शाह यहां बैठे हैं। सालों साल इन्होंने लियारी पर राज किया, सालों साल। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी जब लियारी से हार गई तो समझो पार्टी खत्म। शकूर शाह जिंदाबाद। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जहां राज किया वहां भी काम नहीं किया। दूसरी बात, रेवेन्यूज केपीटी के पिछले साल हम 21 बिलियन पे ले गए थे, इस साल हम 24 बिलियन पे ले गए। 5 महीने में पिछले जनवरी से अभी तक 5 महीने में बगैर किसी को निकाले, किसी को ले ऑफ नहीं किया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, 602 मिलियन रुपए बच गए। पता है कैसे बचे? वो ऐसे बचे कि डीजल चोरी रुक गई, ओवर टाइम में करेक्शन लग गया, स्पेयर पार्ट्स की चोरी रुक गई, मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो गई, जहां रिजर्व फंड रखा जाता है वो एक और बैंक से नेगोशिएट किया, वो ज्यादा इंटरेस्ट मिल गया, 602 मिलियन रुपए ज्यादा हो गए। छोटी छोटी चीजें जो अगर एड अप करें, जो पहले होती रही है, तो वो अरबों में, करोड़ों में नहीं, अरबों में उनकी करप्शन थी। स्पीकर साहब, सीपैक प्रोजेक्ट्स के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट केपीटी सीपैक प्रोजेक्ट में नई डिलीवरेबल जेसीसी अप्रूवल इंशाल्लाह हो जाएगी। एक ही प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें पूरे 4 नए बर्थ और पूरा एक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन उधर केपीटी के साथ बन रहा है। पीएनएससी में
जहाज पहले 9 थे जब हम आए, फिर 11 हो गया। अब इंशाअल्लाह हम और जहाज खरीदने जा रहे हैं। पीएनएससी में फाइनेंस मिनिस्टर खुश होंगे कि सिर्फ डिविडेंड्स 17-18 में 172 मिलियन हमने दिए थे, 18-19 में 231, 19-20 में 260 और इस साल इंशाअल्लाह और भी देंगे। जापानीज ग्रांट से कुरंगी फिश हार्बर पूरा अपग्रेड हो रहा है, जो कि माहीगीरों के लिए डीप सी फिशिंग खास तौर पे, जिसकी तबाही हाल था। गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने पहली दफा अफगान ट्रांजिट में आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया है। जो एक ईस्ट बे एक्सप्रेसवे रोड है जो कनेक्ट करेगी, वो 86% कंप्लीट हो गई है। 17 बिलियन रुपए की कॉस्ट पे वो बन रही है। जो पाक चाइना टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो गया, माहीगीरों को एड्रेस कर दिया। स्पीकर साहब, बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कि मैं कल रात तक बोल सकूं, लेकिन आखिर में मैं बस ये, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उनकी बात से इत्तफाक करके खत्म करता हूं। उन्होंने कहा, फरजंद जरदारी ने कहा, उन्होंने फरमाया कि मुल्क में गधों की तादाद बढ़ रही है। मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं। गधों की तादाद इसलिए बढ़ रही है कि गधों की गोश्त की अब नारी नहीं बन रही, तो गधे ज़िबा नहीं हो रहे। लेकिन स्पीकर साहब, एक सूबा वो भी है जिसपे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। वहां कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, उसके टीके भी नहीं मिल रहे। वहां पे एमपीएस भी फारिग हो रहे हैं, फुप्पो भी फारिग हो रही है, मुअत्तल कर दिया जाता है। स्पीकर साहब, कमाल है कि यहां पे आके हमें दर्स देने से पहले थोड़ा अपने आप को देख लें। और आखिर में एक शेर सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा। फना की, ये खास तौर पे स्पीकर साहब गौर से सुनिएगा, समझ आ जाएगी, जिनको समझने वाले को इशारा काफी है। फना की आखिरी हद पे खड़ा हुआ था हुर। बाजी आपके लिए, फना की आखिरी हद पे खड़ा हुआ था हुर, बका की हद पे उसे ले आए हुसैन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब।